चलो, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. હવે 2 revolution per second square. ભક્તિ revolution આવે ને એટલે પહેલાં તાર રેડિયનમાં. રેડિયન ઇઝ અ સપ્લિમેન્ટરી યુનિટ. અને રિવોલ્યુશન એક કેવો કે કન્વેન્શનલ યુનિટ કહેવાય. તો તારે એને રેડિયનમાં જ ફેરવવું પડે ને એક રોટેશન ઓર એક રિવોલ્યુશન 2π રેડિયન. હા, તો 4π રેડિયન પર સેકન્ડ. ચાલો, હવે આટલો આલ્ફા મળે. અહીંયા ટોર્ક કોણ પ્રોડ્યુસ કરશે? આ સોલિડ સિલિન્ડર છે એટલે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ mr²/2. ટોર્ક કોણ પ્રોડ્યુસ કરશે? ટેન્શન. તો ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ ટી. sin 90 લખો કે ચાલશે? because T into perpendicular distance. રેડિયસ આપેલી છે. ટેન્શન ઇન ધ સ્ટ્રિંગ રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રોડ્યુસ. ચલો, તો ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ I આલ્ફા I mr²/2 આલ્ફા R. તો mr આલ્ફા બાય એમની વેલ્યુ 50 R 0.5 આલ્ફા ડિવાઇડેડ બાય, ચલો કેટલા આવશે? 0.5 ઇન્ટુ 4 એટલે 2, 50 ઇન્ટુ પાય એટલે 157. જો 50 ઇન્ટુ પાય 150થી વધારે એવો તો એક જ છે. ચાલો, આ બહુ સારો પ્રોબ્લેમ છે. હવે આ લોકોને છે ને રિયા મેં પપ્પુસ થિયરમ ભણાવે. આપણે ભણીશું. તમે કેટલા ભણેલા હતા? 2. પેરેલલ એક્સિસ અને પરપેન્ડિક્યુલર. પપ્પુસ ભણેલા. પણ જો કે તમારે સારું છે. જો ઇવન આ JEEમાં પણ આ સિલિન્ડરની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા આપેલી છે. વધારે એકચ્યુઅલી શું હોય, કોઈ સિલિન્ડર હોય ને, આ સિલિન્ડર જ્યારે આમ રોલ કરતો હોય ને સૃજન, તો એની જોમેટ્રિક એક્સિસ કહેવાય. અને આને અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એટલે આ કોનું બચ્ચું? ડિસ્કનું. એની માં કોણ? डिस्क. आऊँ मैं भणावे. इसकी मम्मा डिस्क है, डिस्क जैसा लगता है तो उसका डीएनए में डिस्क है, तो mr²/2 ऐसा आएगा. लेकिन ये जब ऐसे घूमेगा ना, ऐसे આવી રીતે ફરે ને, તો એના મા બાપ બંને છે આ વખત. ये किसका लड़का है ऐसा पूछा जाए तो ये आ गई डिस्क. ऐसी डिस्क 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 जब बराबर ऐसे ये डायामीटर है ना डिस्क का, डायामीटर की ओर घूमेगी, अबाउट घूमेगी, तो भी ये सिलेंडर बनेगा. और दूसरा उसका बाप कौन है? रॉड. दूर से देखते हैं तो रॉड घूम रहा है. तो मैंने क्या पढ़ाया था इन लोगों को पता है? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I रॉड प्लस I डिस्क अबाउट डायामीटर, ऐसा मैंने पढ़ाया था. वो आपको भी पढ़ाऊंगा मैं. रॉड यानी ml²/12 है ना, और ये आएगी mr²/4.
अब आप m बाहर निकालोगे तो r²/4, तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगी, लेकिन आपको दी गई है, दे दिया है JEE માં આપી દીધેલું હતું. હવે શું કીધેલું છે કે ભાઈ આવો એક સિલિન્ડર છે, માસ m, તો માસ m given, length n r, radius about an axis passing through its center and perpendicular to axis of the cylinder is फलाना. If such a cylinder is to be made for a given mass, देखना गिवन मास यानी हमारा मास कांस्टेंट है, गिवन यानी वो कांस्टेंट है. द रेशियो L/R फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल आई, मिनिमम पॉसिबल आई. अब मिनिमम पॉसिबल आई, इसके लिए L/R रेशियो फाइंड करना है. अमतुल्ला, तेरे को ये मालूम है कि y વર્સિસ x આવું રિલેશન આપેલું હોય, તને 4y મેક્સિમમ હોય કે y મિનિમમ હોય. y वर्सिस x एक रिलेशन है. अगर तेरे को y मैक्सिमम और y मिनिमम चाहिए तो dy/dx क्या आएगा? है भक्ति, खबर है तने? तो अँ तारे है ने आई ने मिनिमम लेवानी है. तो di/d समथिंग, अब समथिंग में वेरिएबल कौन है वो मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. अब हमें क्या करना है पता है? ये प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, मास कांस्टेंट रखना है, लेकिन L और R को वेरिएबल रखना है. L को चेंज करो तो R भी चेंज होगा. समझ लो मास इसका भी m है और इसका भी m ही मास है, दोनों का मास सेम रखना है. अगर आप लेंथ कम रखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, है क्या ना? इतनी जगह में ही पूरा मास आपको डालना पड़ेगा. अगर आपने रेडियस कम की तो आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेंथ તમારે વધારવી પડશે કે જેથી આ બધું માસ અમારે. ચાલો બીજું કે આની ડેન્સિટી રો બોલો તમારી કેવી રહેશે? કેમ કોન્સ્ટન્ટ? માસ કોન્સ્ટન્ટ છે, મટીરિયલ છે, રો તો મટીરિयल એનું એ જ છે એટલે રો તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહે. मास કોન્સ્ટન્ટ નહીં, મટીરિयल એનું એ છે એટલે રો કોન્સ્ટન્ટ. हाँ, माफ करજો, सेम मटेरियल का बना हुआ है, इस वजह से रो कांस्टेंट है. चलो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पता है, तो हमारा मास गिवन है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा? अब सिलेंडर का वॉल्यूम बोलता रिया, सिलेंडर नो वॉल्यूम πr²h, h ने बदले L. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है ना, धरा πr²h. तो हियर v इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज m रो आ बने कांस्टेंट है. πr²L that is equal to constant. तो r²L that is equal to क्या लूँगा मैं? कुछ के ले लेता हूँ. किसको सब्जेक्ट बनाए आपकी मर्जी, L को बनाऊँ कि R को बनाऊँ? L को बनाऊँ. अच्छा, जो आप बोलोगे वो बनाता हूँ, R को बनाता हूँ. अच्छा, तो r² इज इक्वल टू k/L. चलो इसको नंबर 1 लगते हैं. k कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट अपॉन पाई डेट इज इक्वल टू
कांस्टेंट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया गया है, m r²/4 L²/12। मिस है कि इसमें 3 वेरिएबल है, कौन कौन से पता है? आर भी चेंज होगा, एल भी चेंज होगा, आई भी चेंज होगा। अब जब डिफ्रेंशिएशन करना हो सिर्फ 2 ही वेरिएबल होने चाहिए अध्ययन। तो हम क्या करेंगे, ये जो r² को हमने सब्जेक्ट बनाया ना, r² ने આપણે કરતા બનાવ્યો ને ગુજરાતી વાળા, કોઈ છે જ નહીં, કેમ હરી ક્યાં ગયો? r² ને આપણે સબ્જેક્ટ બનાવ્યો ને, તો r² ને k/l આપણે આવું લખીશું। તો I is equal to m k/4l L²/2 L²/12। चलो अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या आ गया, हमारा वेरिएबल क्या आ गया, सिर्फ 2 ही वेरिएबल बचे। बैठ जाओ ऊपर। तो di/dl सिर्फ i ही है ना, सॉरी ये इक्वेशन में वेरिएबल कितने थे, i r l। अब ये 2 का, यहाँ पे i r और l दोनों पे डिपेंड करता था, यहाँ पे सिर्फ l पे बस। अब मैंने बोला था कि i मिनिमम करना हो तो di/d समथिंग। अब समथिंग में हमारा कौन आ गया? अगर आप l को सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पे di/dr आता। चलो k/4 L इनवर्स सही लिखा मैंने, 1/12 d/dl ऑफ L²। ये 0 m k/4 अमतोला, ये दोनों मैंने L इनवर्स कर दिया, पता है ना। di/dl के स्टेप लिखो एक ज़्यादा, समझ नहीं पड़ रही है, समझ पड़ी नहीं पड़ी ने डिफ्रेंशिएशन જોયું મને કેવું ખબર પડી જાય। તો di/dl वो m कांस्टेंट है, तो d/dl ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k/4 L इनवर्स। तो आ डिफ्रेंशिएशन બંનેનો अलग अलग કરવાનું, બોલો ને m। હવે ચલો di/dl ને 0 જ કરી નાખો, કારણ કે i મિનિમમ હોય ને, તો di/dl 0 થાય। ચાલો તો શું આવશે અહીંયા, k/4 ડાયરેક્ટ લખો હવે, -1 પાવર -2 L² નો 2L, m 0 के डिनोमिनेटर में, 0 ना छेद में, -k 4L² L/6। चलो तो k/4 L² L/6 2/3 आएगा। k की वैल्यू यहाँ पे है, देखो देखो देखो, r² L/6 L कट, नीचे एक L कट, नहीं कहाँ पे कट, L²/r² फाइंड करना है ना, तो L²/r², तो 6/4 यानी 3/2। तो मैंने क्या पढ़ा है पता है, मैंने ये पढ़ा है कि ये हमारा ये सिलेंडर, अब ये जो सिलेंडर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दी गई है। वैसे तो पप्पू के थियरम में भी मैंने पढ़ाया था। अब बोला है ऐसा कि फॉर गिवन मास एल और आर, L/r क्या होना चाहिए कि जैसे आई मिनिमम हो जाए। तो तेरे को मालूम है कि मास गिवन है तो m कांस्टेंट, L वेरी होगा तो r भी वेरी होगा। क्यों? मास को कांस्टेंट रख रहा है, लेंथ लंबी रखेगी तो रेडियस कम रखनी पड़ेगी, अगर रेडियस ज़्यादा रखेगी तो लेंथ कम रखनी पड़ेगी। तो L और R ऐसे सेट करो कि L/r के रेशियो से हमें I मिनिमम मिले। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाएंगे, I, L और R।
अब वॉल्यूम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। इस वजह से मैं क्या बोलूँगा, पाई आर स्क्वायर एल कांस्टेंट, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एल हमारा कांस्टेंट, इसे मैंने के एज्यूम किया। अब आर स्क्वायर आ जाएगा के बाय एल। उन लोगों ने बोला कि सर आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो वहीं अच्छा रहेगा, तो इस वजह से मैंने आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, तो एल को भी बना सकती है। अब आई का जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें आप आर स्क्वायर की वैल्यू पुट, तो हमारी इक्वेशन अब आई और एल दो ही वेरिएबल का हो गया। आपने पढ़ा ही है कि भाई आई अब एल पे ही डिपेंड करती है, तो आई का मिनिमम चाहिए तो डी आई बाई डी एल क्या होना चाहिए, 0 बस। फिर मैंने हाँ और के की વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દી, બરાબર છે રિયા? હવે દાખલા ગણવાના આપણે ઘરે જઈને, હા એકાદ વખત ટ્રાય કરીએ, પાછી નહીં આવડે તો પૂછી લઈએ। ચાલો, આ પણ બહુ સારો દાખલો છે। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैंने इन लोगों को पढ़ाया था तो डेरिवेशन भी करवाया था। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ थिन रोड ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम ए टू बी एस फलाना। लीनियर मास डेंसिटी आपेली है, ऐसा रोड आपको दिया गया है। एक एंड रोड नो ए पासे है, बीजो एंड बी पासे। आ एक्स इज इक्वल टू 0 तो पछी आ एक्स इज इक्वल टू एल थाय, बिकॉज एल लेंथ नो रोड आपेलो है। बट आ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज लेमड़ा यानी मास अपॉन लेंथ वो वेरी हो रहा है। अब किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है, उसका पूरा मास m दिया गया है। इफ m इज द मास ऑफ द रोड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ए, हमारी एक्सिस ऐसी है, पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। अब मैं से कि मैं क्या बोलता हूँ पता है, अगर ये मास यूनिफॉर्म होता ना तो ml²/3 आता, सही है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे मास यूनिफॉर्म नहीं, तो मैं पूरे रोड को ऐसे छोटे 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 लाइन एलिमेंट्स नाना 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 रेखाखंडों में डिवाइड करवा। चलो आ डिस्टन्स आपणो एक्स dx, तो dm इज इक्वल टू याद आवे लेमड़ा dx। अब लेमड़ा 0 x/l dx, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, dmx²। ये हमारा पार्टिकल हो गया, पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स नो स्क्वेर, आउट थाय ने। सारू, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमड़ा 0 x² को मल्टीप्लाई कर दूँ x³/l dx, सही है रिया? वो जो x² यहाँ पे आएगा ना वो मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। चलो लिमिट कहाँ से कहाँ पर आएगी, 0 से है। लेमड़ा 0 कांस्टेंट है, ये आएगा हमारा x³/3, आता है ना ये इंटीग्रेशन भक्ति, x⁻n dx। जो पावर है उसको एक ऐड करना और उसी पावर से डिवाइड करना। तो लेमड़ा 0 पहले x के बदले आपको l लिखना है, तो ये आ गया l³/3, l³/4, कितना? अच्छा, तो 7l³/3। ओ बाप रे, आंसर तो नहीं मिला हमें,
आंसर तो एम के फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम डीएम करोगे तभी एम मिलेगा ना, 0 से। अब डीएम क्या है, लेमडा 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ना 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 ना, डीएम लेमडा 0। बेटा ये डीएम वाली वैल्यू है। चलो 1 डी एक्स यानी एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, एल प्लस एल स्क्वायर बाई 2 है, फिर 0 लिखोगे तो सब 0 हो जाएगा। 3 लेमडा 0 एल बाय 2, तो लेमडा 0 को सब्जेक्ट बना दो, 2m बाय, क्योंकि आंसर में कहीं पे भी लेमडा 0 नहीं है। तो भक्ति लेमडा 0 की वैल्यू पुट कर, यही है 12 तो मैंने लिखा हुआ है, 7/18 सही है। काफ़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को इस प्रॉब्लम, वो पता ही नहीं था कि एम के फॉर्मेट में लाना है। हाँ આવો કોઈ એલિમેન્ટ હોય ને, આનું આખાનું માસ સેમ નથી, તો તને લેમડા એટલે માસ અપોન લેન્થ, આવું તું ભણેલી? તો માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ લેન્થ. આની લેન્થ કેટલી છે? dx. હા પડી. તો આનું માસ છે dm. હવે આવું ક્યારે લખવાનું? જ્યારે લેમડા યુનિફોર્મ ન હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આટલા પોર્શન પૂરતું તો ન્યૂટને એમ કીધું કે યુનિફોર્મ જ થાય, बिकॉज एक्स बदलाए तो लेमड़ा बदलाए, लेमड़ा बदलाए, मास बदलाए, बट इतने छोटे पार्ट के लिए लेमड़ा हम क्या एज्यूम करेंगे? कांस्टेंट. क्या नहीं लिख सकते? टोटल लेंथ इनटू लेमड़ा नहीं लिख सकते, क्योंकि लेमड़ा हमारा वेरिएबल है. हाँ, अगर लेमड़ा ऐसा कांस्टेंट होता तो 5 kg पर मीटर ऐसा होता तो आप तुरंत लिख देते कि भाई लेंथ 10 मीटर है तो मास क्या आएगा? लेमड़ा इंटू एल 50 kg. क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट. पता चला आपको? चलो, अब ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत देते हैं. ધારા કાપ કૂપીવાળા દાખલા છે, એકમાંથી બીજું કાપવાનું આવડે બધું? अमतुल्ला तो तेरे को ये पढ़ाना है मेरे को, मुझे सिखाना है. फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, अ सर्क्युलर होल of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? और डिस्क आपेली हुई तो मैं थोड़ा 3D में ड्रॉ करता हूँ. ऐसी आपको एक डिस्क दी गई है. આવી ડિસ્ક છે. ડિસ્કની રેડિયસ કેટલી છે? આર. मास एम, सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर आर, इसमें से आपको एक सर्कुलर होल ऐसे काटना है, यानी कि बीच में एम्प्टी स्पेस हो गया.
अब व्हाट इज द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट? तो रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट ऐसा दिखेगा आपको, है कि नहीं? ये रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है। अब इसमें क्या है पता है? एक्सिस जो आपको दी गई ना उसे छोड़ना मत, एक्सिस वही होनी चाहिए। कौन सी वाली? जो मैंने अभी दिखाई है, यही एक्सिस होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो कटेड पोर्शन और बाकी का भाग अगर मिल जाए तो आई डिस्क होगी। तो आई बिगर डिस्क इज इक्वल टू आई कटेड पोर्शन, जिसे हम स्मॉल डिस्क भी बोलेंगे, डिस्क में से डिस्क ही कट हुई है, प्लस आई रिमेनिंग। ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बना हुआ है? पूरी डिस्क किसकी बनी हुई है? वो कटेड पोर्शन और रिमेनिंग की। तो आप अब बड़े हो गए, अगर आप कटेड पोर्शन डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? आई रिमेनिंग डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आई बिग डिस्क माइनस आई कटेड पोर्शन, ऐसा ही लिखोगे ना आप? बिग डिस्क, तो इसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसका मास m है। अब इसका डायामीटर, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी? r/2। अमतुल्ला, मैंने इन लोगों को सेंटर ऑफ मास में ऐसा पढ़ाया गया कि पूरा मास कहाँ पे फैला हुआ है? डिस्क पे। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया क्या होता है डिस्क का? पाई रेडियस स्क्वायर। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। रिया, ये मास m है ना, जिसकी रेडियस r है। अब इसकी रेडियस r/2 हो गई। रेडियस अगर आधी हो गई ना, आधा का स्क्वायर 1/4, तो मास कितना आ जाएगा? m/4। तो आपको ये सब गिनना नहीं है, डायरेक्टली लिख लो कि इसका मास आ जाएगा m/4। किसका? कटेड पोर्शन का। अब कटेड पोर्शन की ये IC होगी, सही है? इसके बारे में मेरे को मालूम है, मास रेडियस स्क्वायर/2। मैंने ये सब वर्डिंग में याद रखा होगा। mr²/2 में याद नहीं रखता भक्ति, पता है ना तेरे को? मैंने ऐसा बोला था पढ़ाते समय कि ऐसे याद रखो, मास रेडियस स्क्वायर/2। लेकिन हमें तो किसके अबाउट फाइंड करनी है? काली वाली एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? r/2। तो आई बिग डिस्क पूछो इसे, ये ब्लैक वाली को पूछो कि तू बड़ी वाली की क्या है? ज्योमेट्रिक एक्सिस। वो एक्सिस, तो ये बड़ी वाली डिस्क की क्या है? ज्योमेट्रिक। तो मेरे को मालूम है बड़ी वाली डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगी? mr²/2। ये ब्लैक वाली को पूछो, तो ये छोटी वाली की क्या है? क्या लगती है तू छोटी वाली की? तो उसकी IC की पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IC प्लस m/4d²। ये भी स्टेप नहीं लिखना है हमें, ये तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ाते समय दिखाया है। हमें, हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने उन लोगों को बताया था नीट 2025 का पेपर, उसमें जगह ही नहीं थी, तो कहाँ पे गिनती करोगे? ऐसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक स्फीयर में से स्फीयर काटने का प्रॉब्लम इतना लंबा था, वो जो गिनती करके मेरे को दिया था यहाँ पे सॉल्यूशन, वो 2 पेज का था। मैं बोला इतना थोड़ा आएगा, इतनी प्रॉपर लेंथ में 7 स्टेप में ही आना चाहिए। आप लोगों ने किया था ना स्टेप? नहीं, वो 10th वालों ने किया था, 9th में थे तब वो। मैंने बोला 7 ही स्टेप में करना था, 7 ही स्टेप में किया था। नहीं लखी सकी बेन, करती भी नहीं आनंद। हाँ, એવું કંઈ કરતા એટલે તારે તો નહીં આવે, ઓનલાઈન આવે, સમજ્યા? આપણે પેપર મળે
આમમાં જ કરવાનું. OMR શીટને હે એનું કારણ છે કે એવું કરતાં કરતાં ભૂલથી OMRની પાછળ એક હોલ થઈ જાય એટલે તારું માર્કમાં હોલ પડવાના ચાલુ થાય. OMRને બને ત્યાં સુધી ક્લીન રાખો, क्योंकि इन्हें कोई मैनुअल चेकिंग नहीं थતું. कंप्यूटर हाँ, उस पर अगर ऐसे दाग लग जाएंगे ना तो वो रीड नहीं करेगा सेल. और जो पेंसिल होती है, पेंसिल तू ले ही नहीं जा सकती. पहले तो पेंसिल तेरे को मिलेगी ही नहीं, वो खुद ही पेन देंगे. अगर भूल से भी तूने वहाँ पे लिखा ना तो उसका अगर वो इम्प्रेशन बना दूसरी ओर तो तेरा मार्क चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से लाइट पास होती है और OMR का वो सर्कल रीड होता है. कुछ पता चला? ऑप्टिकल सेंसर होता है वो. स्वच्छता अभियान वहाँ पे चलाना है हमें. तो आई कटेड पोर्शन की है IC, लेकिन हमें तो फाइंड यहाँ से करनी है. चलो IC मैंने क्या बोला अहमदुल्ला? मास रेडियस स्क्वायर बाई 2 एरिया. आनो ज मास आनी ज रेडियसनो स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये IC है. लेकिन हमें तो वो जो काली एक्सिस है ना उसके अबाउट फाइंड करना है. तो काली एक्सिस उसकी पैरेलल एक्सिस है. प्लस m/4 d स्क्वायर. अब d कितना आया? तो हमें एक ही स्टेप में करेक्ट लिखना है, गलती होनी नहीं चाहिए. पता चला धारा कि फिर से समझाओ? आवड़ी गયું? લોકો શું કરે? આ બધું અલગ અલગ ફાઇટ કરે, અલગ અલગ નહીં, એકમાં જ આવવું જોઈએ. mr²/2 તો ડાયરેક્ટ લખી દઉં તો 16 - 13 13 mr²/32. એ આન્સર આવે છે. ચાલો, તો આવો જ પ્રોબ્લેમ છે. 3 વખત પૂછાયો છે. JEEમાં પૂછાયો, एडवांस में पहला पूछेलो, मेंस में આવી ગયો. આ जो 2018 बच्चों को मैंने रट्टा मरवा दिया था, 4 ही आता है. शायद PMT में भी आया है. अब इसमें क्या है, अब मैं 3D में नहीं दिखाता, आपको पता चल गया ना कि एक्सिस ऐसे ड्रॉ करी है. 2D में ही आप समझ लो. यहाँ पे ही मैं रखता हूँ और इतनी जगह में हमें गिनना है. देखना क्या दिया गया है. फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस RN मास 9 m. इसका मास 9 m. स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस R/3 इज कट, तो इसका मास आएगा m. कैसा आएगा? मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एरिया. एरिया यानी रेडियस स्क्वायर. अब रेडियस कितना पार्ट की हुई? R/3 यानी 1/3. 1/3 का स्क्वायर भक्ति 1/9. 1/9 यानी मास 9 पार्ट का हो गया. ये पूरी डिस्क का मास कितना है? 9. तो इसका मास 9m/9 यानी m हो जाएगा. चलो, किसके अबाउट हमें फाइंड करना है? ये वाली एक्सिस. 3D में दिखाऊं कि चलेगा? O में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है. इसके बारे में हमें पता है, उसकी IC पता है. और ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो क्या आएगा? R - R/3 2R/3. सही है? ऐसा मैंने ड्रॉ किया हुआ. ये R/3. तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2R/3. कौन सी वाली एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है? यहाँ पे मैं लाल रंग ले लेता हूँ. लाल के अबाउट. इसकी आपको क्या मिलेगी? IC पता है और ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है. चलो, कौन मेरे को समझाएगा?
I remaining, I big disk minus I cutted portion. Big disk mass रेडियस स्क्वायर बाई 2. देखा, मैं ऐसे ही मैंने ये सब याद रखा हुआ है. एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं रखा है, मास रेडियस स्क्वायर बाई 2 माइनस बोलता रिया. वो छोटी वाली के लिए मास तो एम ही है, लेकिन रेडियस आर बाई 3 है बाई 2, प्लस एम डी स्क्वायर, मास तो एम ही है लेकिन डी. बस इसका सिंप्लीफिकेशन आप ले लोगे ना, तो क्या आ जाएगा 4mr². तो सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं करता, चलेगा. A rod PQ of mass m and length L is hinged at point P. P के पास उसे परोया गया है. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q, as shown in figure. When string is cut, string cut होगी, पहले क्या था पता है? ये तो यहाँ पे परोया गया है, ये तो छूटने वाला नहीं है. तो यहाँ पे क्या लगता था पहले यहाँ पे लगता था mg. दूसरा यहाँ पे क्या लगता था? टेंशन. mg टेंशन, और ये इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, ऐसा पता है ना, उस दिन भी पढ़ाया था. इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, टी का एंटी क्लॉकवाइज, टेल टू हेड. तो मिस भक्ति, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी इक्विलिब्रियम में था लेकिन साथ छूट गया. अब क्या होगा? पी के अबाउट क्या होगा? रोटेशनल मोशन शुरू हो गया. तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, अब पी के पास भी फोर्स है कि नहीं? कितने कितने फोर्सेस आएंगे? दो तरह के फोर्स आएंगे. mg नहीं, एक परपेंडिकुलर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. एक प्रॉब्लम आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा किधर होगा. एक प्रॉब्लम है ही है, ये हिंज कहलाती है. हिंज से परोया गया है ना. देखो यहाँ पे मेरे उंगली पे कितने फोर्स लग रहे हैं? अभी 2. अभी तो एक ही लग रहा है. नहीं, 2 ही लग रहे हैं. ये mg और एन. हाँ, यहाँ पे 2 तरीके के फोर्स लगेंगे. जैसे ये घूमेगा ना, तो इसे घुमाने के लिए कौन सा वाला फोर्स चाहिए? सेंट्रीपेटल. और साथ में इसे बैलेंस रखने के लिए अपवर्ड भी फोर्स है. तो हिंज के पास ऑलवेज 2 ही फोर्स होते हैं, हिंज के परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल. पढ़ाया था उस दिन. अभी इसमें जाना नहीं है. इसे भूलना हो, ये फोर्सेस को भूलना है, तो रेफरेंस पॉइंट किससे ले लेते हैं? पी को. क्यों? चाहे यहाँ पे हजारों फोर्स लगे, उसका टॉर्क क्या आएगा? 0, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू पी. तो इस वजह से मैंने क्या कर लिया यहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू पी. तो बाकी कौन बचा? mg. टेंशन तो बोलो 0 हो गया, कट हो गया. तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू mg L बाई 2. टॉर्क टॉ आई अल्फा किसके अबाउट घूम रहा है? एंड के अबाउट. तो ml² बाई 3. कट हो जाएगा, एक L चला जाएगा. 3g बाई 12. चलो, आपका नीट का ही है ना ये. अब इन लोगों को मैंने पढ़ाया था, अमतुल्ला, आपको भी मैं पढ़ा दूंगा, कि अगर स्क्वायर प्लेट होती है ना, स्क्वायर प्लेट, वो थियरी में मैंने लिखा हुआ है. स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट की कोई भी एक्सिस ले लो, ये वाली एक्सिस,
ये वाली एक्सिस ले लो, इसकी ma²/12, इसकी भी ma²/12, चाहे डायगोनल ले लो उसकी भी ma²/12, चाहे ये वाली एक्सिस ले लो ma²/12, चाहे आप ऐसी वाली कोई भी एंगल बनाती हुई एक्सिस ले लो। स्क्वायर प्लेट ही ऐसी प्लेट है कि जिसके प्लेन में से पास होती हुई और सेंटर और प्लेन में से पास होती हुई जो भी एक्सिस होगी ना वो ma²/12। अब ये कहाँ से आया? तो मैंने वो थियरी में इन लोगों को पढ़ाया, आपको भी मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन स्क्वायर प्लेट ही ऐसी प्लेट है जिसकी सेंटर में से पास होती हुई और प्लेन में रही हुई जो भी एक्सिस होगी ना उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे देखो IAC, IEF कोई भी ले लो आप, IAC I बस ये दोनों सेम होंगे, दो ही तो एक्सिस है यहाँ पे EFAC, तो ऐसा है कुछ डी। हाँ तुमने કરાવેલું છે થિયરીમાં? તો આપણે ત્યાં ભણાવેલું ત્યાં 10 મિનિટ થિયરીમાં આપણે લીધેલું જ ને, આપણે બધી એક્સિસ લીધેલી, પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ લીધેલું હતું. હવે a straight uniform rod of mass m and length L is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. किस प्लेन में वो रोटेट करेगा? वर्टिकल प्लेन. देयर इज निग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट. अब यहाँ पे दो तरह के फोर्स लगेंगे. ऐसे आपको नहीं मैंने पढ़ाया था, है परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल फोर्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स. क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो ये स्लिप हो जाएगा. इसकी टेंडेंसी, उसकी वृत्ति क्या है? लेफ्ट हैंड साइड स्लिप होने की. अब मैं यहाँ पे ही ओ पे ही अगर रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ तो किसके टॉर्क ज़ीरो हो जाएंगे? FV के, FH के. बाकी किसका टॉर्क बचेगा? mg का. चलो ये L/2 है. हाँ ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास हम लेते हैं क्योंकि फोर्स कहाँ पे दिखाएंगे? सेंटर ऑफ मास. अब mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O. टॉर्क टॉ इज इक्वल टू mg sin थीटा L/2. अब टॉर्क टॉ डेट इज इक्वल टू I अल्फा. सही है? I अल्फा डेट इज इक्वल टू mg sin थीटा L/2. I तो ml²/3. एक L चला जाएगा तो 3g sin θ/2 है. यह आ जाएगा हमारा आंसर. चलो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम पूछा गया था. अगर किसी को समझाना हो तो समझा सकता है वो. ધરા કરાવ્યો છે આ PYQમાં? PYQ કરાવે ખરા સ્કૂલમાં? નથી કરાવતા? ले तो तुमने मेंस में कम रखा? उसको बोर्ड क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? फी लाई खरी मेंसनी अलग थी फी लाई, एडवांस वाला नहीं अलग थी लाई एक हरखी. सारू है अपने तो 15,000 एक सेबना 15 એટલે 4 60,000. मेंस वाला तो दान करवा ज आवे आ लोको.
તમારીને ખબર ને એડવાન્સ વાળાની ફી સેમ. તમારો ક્લાસ તો દાની એમ કહું કે આપ दान भी लोग आते हो. બીજા સ્કૂલમાં મહેનત તો હા તો ને પછી ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ ની અલગ ને ફી. ગુજરાતી મીડિયમ ની ઓછી હારે બેહાડે. आपकी ना तुम्हारी इंटीग्रेटेड वाला लगभग सेम જ હશે. Yeah. 7 identical circular planar disc, each of mass capital M and radius capital R, are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P is. चलो ये जो P पॉइंट के अबाउट हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसके अबाउट फाइंड करना है? P के अबाउट. अब पहले तो ये देखो कि ये क्या है. ये जो चक्कर दिखाए गए हैं वो सभी डिस्क है और ये सातों दिशों का सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ओ पे है. तो ये हमारा होगा सेंटर ऑफ मास सिस्टम, है कि नहीं? मेरे को किसके अबाउट फाइंड करनी है? पी के अबाउट. एक्सिस ऐसी है, ऐसी पी में से पास होती हुई होगी प्लेन को परपेंडिकुलर. इसको मैं 3D में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चक्कर आ जाएंगे. हाँ, तो ऐसे आप एक पेन रखो पी के परपेंडिकुलर और दूसरी पेन रखो ओ के परपेंडिकुलर. ओ को हमें पी के अबाउट फाइंड करनी है, पहले हम ओ के अबाउट फाइंड करेंगे. अब ओ में से पास होती हुई जो एक्सिस है ना, वो बीच वाली डिस्क की आईसी है, लेकिन ये जो बाकी की 6 है ना उसकी आईसी नहीं है. बाकी की 6 का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें से अगर आप पास करोगे तो उसकी ये नहीं. पहले हमें क्या फाइंड करना है? आईओ. आईओ यानी ICOM सिस्टम. तो मैंने क्या फाइंड किया देखो, IC सिस्टम जिसे हम IO भी बोलेंगे. कितनी डिस्क है? 7. तो IC सिस्टम दैट इज इक्वल टू बीच वाली का क्या आएगा? और 6 ऐसी डिस्क होंगी जिसके लिए ये जो ये जो है ना ये वाली एक्सिस ओ में से पास होती हुई एक्सिस वो इसकी आईसी से पैरेलल होगी. ये वाली डिस्क की आईसी यहाँ पे है, लेकिन मेरे को तो आईओ फाइंड करना है. क्या आएगा? 6 mr²/2 m 2r². સહી હે? એ ધ્યાન રાખે. ખબર પડી તને? ખરેખર શું ખબર પડી? કે આને અબાઉટ આની એક્સિસ તમે ચેન્જ નહીં કરતા, એક્સિસ તો આ જ રાખવા, બટ આની મને આઈસી ખબર છે, આ એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. ચલો તો mr²/2 बड़ी खबर बेन क्या आएगा? 4 2 8 9 54 mr²/2. 55 mr²/2. अगर ओ में से पास होती हुई और पूरी सिस्टम की मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी होती तो मैं ऐसा करता, लेकिन मेरे को तो आईपी फाइंड करनी है. अब आईपी यानी आईसी सिस्टम है प्लस 7 m. अरे सिस्टम का मास 7 है. अल्लाह 7 डिस्क 7 m और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 3r².
55 mr² by 2, 963 mr², 126, 63 126, પડી ભક્ત પડી તને ખબર हमारे ત્યાં भक्ति है ना 4 वर्ष में वो सीनियर तुम्हारी उसको मैं भक्ति बोलता हूँ भक्त तो वो होशियार रैंकर 181/2 mr². चलो फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एल एंड रेडियस आर अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट. एक गोला दिया गया है, उसमें से आपको क्या निकालना है? कट करके मैक्सिमम वॉल्यूम वाला क्यूब. ऐसा वैसा नहीं कि भाई ये स्फीयर है चलो एक निकाल दिए, ऐसा नहीं है ये. हाँ, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिले ऐसा ही क्यूब निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to one of its faces is. तो मैंने क्या पढ़ाया था मिसे के इन लोगों को स्क्वायर प्लेट के बारे में पढ़ाया था कि ये स्क्वायर प्लेट होती है और उसकी ये ज्योमेट्रिक एक्सिस होती है. क्या तेरे को याद है ये ma²/6 लिखवाया है? ये स्क्वायर प्लेट की उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस. बाकी प्लेन में से पास होती हुई कोई भी एक्सिस आएगी ma²/12. हाँ, अब क्या अगर इसकी थिकनेस में बढ़ाता जाऊँ तो ये बन गया आपका नहीं क्यूबॉइड. और थिकनेस बढ़ाओ और बढ़ाओ क्यूब भी बन सकता है, और ऐसे बढ़ाओ तो ऐसा भी बन सकता है. लेकिन वो किसका बेटा है? स्क्वायर प्लेट का बेटा है. माँ का डीएनए है ma²/6 तो पूरा ma²/6. अब m क्या हो गया? ये पूरे क्यूब बोलो क्यूबॉइड बोलो उसका मास हो गया. तो ये वाली जो एक्सिस आएगी उसके अबाउट स्क्वायर प्लेट हो, क्यूबॉइड हो कि क्यूब हो, ma²/6 ही मिलेगा. ऐसा किसने बोला था? वो पप्पू ने बोला था कि पूछना आप पहले तो किसका बेटा, तो वो बोलेगा स्क्वायर प्लेट का. तो इससे क्या बन रहा है वो मैटर नहीं करता, वो क्यूब बनता है कि क्यूबॉइड बनता है. आपको सिर्फ ये दोनों लेंथ ही देखनी है. स्क्वायर है ma²/6. लेकिन नहीं ले मैंने पप्पू नाम रखा, तो कौन सी दुनिया में जीती है? मैंने पढ़, अब मेरे को क्या मालूम ऐसा कैसा नाम है. उस दिन तो तेरे को दिखाया था मैंने. लेकिन पहले मुझे लगा कि आप ही ने नाम रखा. ऐसा ही तो नाम है. कहाँ पे गया था पप्पू? वो वाली बुक में है, वो वाली मास्टरिंग फिजिक्स है ना, उस बुक में है. चलो तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R a cube of maximum possible volume is cut. अब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है पता है ना? ક્યુબનું વોલ્યુમ શું હોય? એનું કદ હોય L3. इसे अगर मैक्सिमम रखना हो तो लेंथ को भी क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम. अब क्यूब में
તમને મેં એન્ટવાળા જ્યારે પ્રોબ્લેમ ભણાવેલા थर्ड चैप्टर में सेकंड थर्ड में, तो मैंने बोला था कि अगर ये एल एल तो ये वाली लेंथ √2 है और ये वाली लेंथ √3। આ રેન્ક યાદ છે? આ એલ આ પણ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ થાય તો √2l², l² તો પેલું કેટલું થાય? √3l। याद है? तो अगर मेरे को मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो ये क्यूब की √3l लेंथ है ना, वो पूरी स्फीयर में समानी चाहिए। अब स्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डायमीटर 2r। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 2r है ना, 2r वो √3l होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम वॉल्यूम बनेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये था, मेन कॉन्सेप्ट ही ये था कि अगर एक मैंने स्फीयर में से क्यूब निकाला, वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम वाला, तो क्यूब निकला स्फीयर में से ना, स्फीयर में सबसे लंबा डिस्टेंस क्या होता है? 2r, और क्यूब में सबसे लंबा डिस्टेंस क्या होता है? √3l। तो वो दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके मैक्सिमम वॉल्यूम आप कट कर सकोगे और ऐसा क्यूब आप वहाँ से निकाल सकोगे। अब फाइंड करना है इसका मास, क्योंकि हमें पता है कि ये क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी? m⁻l²/6, मास लेंथ²/6। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि इसका मास कैसे हम फाइंड करें? तो 4/3 πr³ वॉल्यूम, एम मास, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³। तो कितना आएगा? हाँ, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? l³ वॉल्यूम, कितना मास? 3 ml³ अपॉन 4πr³, ये उसका मास। चलो दूसरा क्या आएगा? 2r = √3 है भक्ति, ये आएगा 2r/√3, 11.5, 2r/√3। कल જોવાની જ ભૂલી ગઈ મેસેજ? नहीं, कितना वागे मोकलेला? आपने बहुत लेट नाइट। ऐसा था? हाँ। ओ बाप रे। l = 2r/√3। चलो तो હવે આની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા કેટલી આવે? ક્યુબની m⁻l²/6, 3 ml³ 4πr³, l²/6। चलो अब क्या करना है? 1/12, नहीं 1/8 m/8 m' नहीं, m' तो हो गया ना, l⁵ है ना। अब l⁵ करोगे तो 32 r⁵, √3 3 3 9 √3, ऐसा ही आएगा। और नीचे रहा था r³, तो 4 mr²/72, हाँ 72, 9√3। तो 4 mr², 9√3π, ये वाला आंसर आएगा।
થોડો ભારે દાખલો ભારે કરીને કંઈ હતું નહીં બાબુ શું હતું ખબર ને મેક્સિમમ વોલ્યુમ કટ કરવું હોય તો સ્ફિયરમાં સૌથી મોટી લેન્થ કઈ ડાયામીટર તો એટલી જ લેન્થમાં શું હોવું જોઈએ પેલો ક્યુબની મેક્સિમમ લેન્થ આવવી જોઈએ ચાલો હવે આ બધા છે ને તમારી औकात बहारना दाखला हमारे JEE वाला है 30 कौन सा अभी वो किया था वो ये वाला आई थिंक 1.5 मिनट लगनी चाहिए इसमें हाँ, हमारा आवश्यक है। 1.5 भी नहीं ऐसे तो हो जाता है 1 मिनट में आपने अगर किया हो प्रैक्टिस की गई हो फंडामेंटल आपको याद होता है तो फिर एक कैलकुलेशन 1 ही मिनट के अंदर आ ही जाती है इसलिए तो बार बार बोलता हूँ कि रोज 10 प्रॉब्लम आप करके सो हमारा आवश्यक कयो है। हाँ, हाँ, આ તમારા જ તો છે आवा मुझे। આ તો તમારા છે આ કેવો ભારે દાખલો છે बराबर? चलो ये पेज अभी मैं साइलेंट कर देता हूँ जो काम का है ना वो पहले ले लेता हूँ फिर बाद में वो પેલું પેજ બહુ ભારે છે ફિઝિક્સ પ્રત્યેનો પ્રેમ ઉઠી જાય ઘણાને એન massless equilateral triangle EFG and massless or massless equilateral triangle EFG of side A situated at its has 3 particles situated at its vertices તો તમને શું કીધેલું છે ભાઈ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ્સ ગુજરાતીમાં સમબાજુ ત્રિકોણ એના વર્ટાઇસીસ પર માસલેસ ટ્રાયેંગલ છે પાછું એટલે માસ બધું ખાલી કોને છે પાર્ટિકલને આવું નીટમાં આવે ધ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ ધ સિસ્ટમ અબાઉટ EX perpendicular to EG in the plane of EFG is n/20 ms square કેટલું આવે છે n/20 ms square where n is an integer the value of n is અચ્છા તો પહેલાં પેલું આ 3 પાર્ટિકલ છે એક્સિસ કઈ લેવાની છે કે આ વળી એક્સિસ તો બધા પાર્ટિકલના પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ લઈ લેવાનું આનું તો r1 0 હવે આ એ છે ને એ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ હા તો એનો આ કમ્પોનન્ટ કેટલો થાય અથવા અલા ભાઈ આ તો કંઈ જરૂર નથી આનો આ અચ્છા તો આ a/2 मिड पॉइंट ही आएगा अगर नहीं आता तो फिर a/2 ऐसा ले लो बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल હોય ને યાર તો તમે મીડિયન ગણો કે બધું ગણો સેમ જ આવશે તો આનાથી આનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કેટલું આવશે बिकॉज આ डिस्टेंस a છે चलो तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे I इज इक्वल टू आई एक्सिस इन अबाउट इसका 0 फिर ये भक्ति m a/2 स्क्वायर प्लस ये m a स्क्वायर ma स्क्वायर बाय 4 એટલે 5 ma स्क्वायर बाय 2 अब हमें क्या दिया गया है अच्छा n/20 कुछ गलती की मैंने नहीं 4 आएगा ना यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 20 लाना है तो n की वैल्यू क्या आएगी 25 सही है मिस हाँ ના ના આપણને આપ્યું છે ને જે લાવવાનું છે n/20 ma સ્ક્વેર તારું આવ્યું છે 5/4 ma સ્ક્વેર હવે 20થી લાવવું હોય તો તારે શું કરવાનું તો 5 × 4 20 થાય તો ઉપર 5 × 5 કેટલા થાય 25 તને આપેલું જ છે ને કે આવું લાવવાનું છે तो तेरा आया क्या 5/4 आया ना तो क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
ચાલો, બહુ ભારે પ્રોબ્લેમ છે. ચાલે ને, ચાલે. જે આન્સર આવે ને આને કેટલો આવ્યો? 5ma² / 4 that is given as nma² / 20. तो यहाँ से n आप सब्जेक्ट बना लो. हाँ, ma² कट हो गया, 100/4 25. ऐसे भी कर सकते हो. ચાલો, હવે આ જે છે ને ભાઈ પ્રોબ્લેમ, બહુ ભારે પ્રોબ્લેમ છે. તમે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાનો યુનિટ શું આવે? કેજી મીટર સ્ક્વેર. અને તમે ગમે તે ઇક્વેશન લો ને, રોડ માસ લેન્થ સ્ક્વેર. હવે જો મિડમાંથી પાસ થતું હશે તો 12, એનમાંથી બોલો ફરતું હશે 3. સ્ફિયર લઈ લો કોઈ પણ, 2/3 mr² होलो 2/5. लेकिन यहाँ पे आएगा मास डायमेंशन स्क्वेर. डायमेंशन એટલે અહીંયા રેડિયસ છે, પેલામાં લેન્થ છે. માસ ડાયમેન્શન સ્ક્વેર અને આગળ કોઈ नंबर हसे, कोफिशिएंट, सहगुणक, कोई नंबर हसे. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू 1 नंबर यानी कांस्टेंट, फिर आएगा मास और यहाँ पे आएगा डायमेंशन नो स्क्वायर. यही तो है किसी भी ऑब्जेक्ट का. अब हमें क्या पूछा गया है पता है? यहाँ पे ABC is a plane lamina of a shape of an equilateral triangle. DE are midpoints of AB, AC. D અને E ABAC ના midpoint. G is the centroid of lamina. अच्छा, centroid ગુજરાતીમાં મધ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. પરિવહન સાંભળશે ને. And perpendicular to the plane is ABC is I0. If part AD is removed, the moment of inertia of the remaining part about the same axis is ni0/16, where n is an integer. હવે જો આની અંદર છે ને, મેં તમને શું કહ્યું, કોઈ પણ બોડી હોય ને એનું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓલવેઝ, અચ્છા હા, કંઈક આવું આવે. હવે મેં આ લોકોને ભણાવેલું, ઓકે, આ લોકોને શું ભણાવેલું ખબર? આવી રીતના પ્લેટ હોય ને અને આ એક્સિસના અબાઉટ ફરે ને, આનું માસ એમ હોય એમ. કઈ એક્સિસના અબાઉટ? ये ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन तो एज्यूम कर ले वो ट्रायंगल है. चलो ना, ये ट्रायंगल ऐसे एज्यूम कर ले, ऐसे ऐसे, और इसके अबाउट ऐसे घूमेगी ना. ये ट्रायंगल है, ऐसे एज्यूम कर ले, एक साइड के अबाउट घूमेगी ना, तो क्या आएगा? mh²/6. ऐसा मैंने इन लोगों को समझाया. आप तुमने लखाવ્યું છે ને? બસ. પણ હવે આમાં કાં બધાને કરવા જાય છે, કોણ ક્યાં ફરે તે જ નથી સમજ પડતી. એકચ્યુઅલી એક્ઝેક્ટલી આ કેવી રીતના ફરે છે ખબર? આખું સિસ્ટમ આમ ફરે છે. मॉडर्न कानूड़ा जो ऐसे घुमा रहता है ना, वो आम फरे છે. હજાર આમાં કાં આટા મૂકી દે માણસ. તો આવો દાખલો આવે ને, આવું જ્યારે આવે ને, અચ્છા બોલ બોલો, હારી બોલો, હા પૂછને હવે. અચ્છા, કેમ ફરે છે? આ જે બધું આખું એક્સિસ છે ને, આમ આખી તને આમ દેખાય છે ને, અચ્છા લે, એમ નથી ગયા. પણ આ બધા બહુ ટ્રાયંગલ, અચ્છા ટ્રાયંગલ મોટો થઈ ગયો કે આમ ફરે છે. આમ આમ આ બધું જ આખું પેલું મોટો ટ્રાયંગલ જોજે, નાનો નહીં. આમ આમ ફરે છે. આમ એની જોમેટ્રિક એક્સિસ કે. અને તો ખબર પડે તમને? હવે આ એની એક્સિસ
અને અબાઉટ મારે બધું શોધવાનું. તો શું કીધું છે કે ભાઈ એબીસી is a plane lamina of the shape of an equilateral triangle DE are midpoints of AB, AC and G is the centroid. Moment of inertia of the lamina about an axis passing through G and perpendicular to the plane ABC is I0. If part ADE is removed, ADE part में આપણે remove करना है. The moment of inertia of the remaining part about the same axis is moment of inertia of કોને રિમૂવ કરવાનો કીધો છે? આટલાને રિમૂવ. તો કેટલા બાકી રહ્યા? નીચેનું ट्रेपेजियम बाकी रह गયું. ट्रेपेजियम हे भक्त क्या बाकी रहेगा? ये ट्रेपेजियम. और इसकी अब ट्रेपेजियम घूमेगा किसके अबाउट? जी के अबाउट. आज पहली जो एक्सिस હતી બસ આની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા હવે જો ni0/16 હોય, एन इंटीजर हो तो एन की वैल्यू शू था वो हमें पूछा गया है. कैसे हम करेंगे ये? तो इसके लिए फॉर ट्रायंगल एम आई अबाउट जी, आई जी मैंने सपोज कर लिया. मेरे को नहीं आता तो क्या करूँ? कुछ नहीं, इतना तो आता है ना कि आई जी जो भी आएगा ना उसमें प्रोपोर्शनल टू कुछ मास तो होगा ही अमीरस भाई, और लेंथ स्क्वायर, डायमेंशन स्क्वायर. अब ये इसकी पूरी लेंथ, ये जो है ना ये लेंथ वो मैंने एज्यूम की एल. किसकी? ये छोटे वाले की मैंने क्या एज्यूम की? एल एल एल. अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो. मैं क्या वो फ्रैक्शन में नहीं जाता, L/2 L/4. तो छोटे वाले को एल ले लेता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है. तो इसकी लेंथ मैंने एल ऐसे निकाली. तो आई जी क्या आएगा? आई जी फॉर ट्रायंगल कौन सा वाला? अच्छा DEF. उसके लिए मैंने एम आई अबाउट जी क्या सपोज कर ली? के एम एल स्क्वायर. ये छोटा वाला दिख रहा है अंदर, ये DEF दिख रहा है. तो बड़े वाला की भी, बड़ा वाला भी सेम ही है. ये भी उसका सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड यानी गुजराती में मध्य केंद्र. कोई छेद नहीं गुजराती वाला. अरे છે हमारी दवे मिस दवे जी मध्य केंद्र. तो DEF छोटा वाला ट्रायंगल है, उसका ये क्या है? सेंट्रॉइड. तो ABC भी हमारा क्या है? बड़ा वाला, उसका भी वही सेंट्रॉइड. अब क्या हो गया पता है? ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसको ऐसे ऐसे मिड से करोगे ना तो 4 पार्ट में वो डिवाइड होगा. कितने पार्ट में? 4 पार्ट में वो डिवाइड होगा. ये एम 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 4 पार्ट है. सभी का मास आप देखोगे, सभी का मास देखोगे एम ही आएगा ये, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है. तो ये बड़े वाला का मास कितना हो गया? 4m. हाँ कि ना? और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 12, क्योंकि ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अला बद्दा संबाजु त्रिकोण. देख ये 60 60 60, तो ये भी 60, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 12. तो मैं क्या बोलता हूँ? IABC कौन बोलेगा? मिस धारा बोलेगी. ABC मास कितना हो गया? 4m हो गया. ये 4 हो गया और लेंथ डबल हो गई. कितना? जी जी बोल बोल. 2 એટલે ચાલ લેન્થ ડબલ થઈ, માસ 4. 2 નો સ્ક્વેર 4, 4 into 4 16. वेरी गुड. 16 IG. अब ऐसा लिख सकते हो ना? 16 IG. छोटे वाले की IG लिखी तो ये बड़े वाले की क्या आएगी? बड़े वाले की 16 IG. IABC. क्लियर है? चलिए अब क्या बोला है? ABC की तो I0 बोली गई है.
અલા ભાઈ એબીસીની તો એમણે શું આપેલી છે? तो 16 IG। सही है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ देवांशी, IABC यानी IDEF प्लस 3 टाइम्स IAD। ठीक है, पूरा ABC 4 पार्ट का बना है, इसमें वो बीच वाला है, बीच वाला, तो बीच वाला क्या है? IDEF। और 3 सिमिलर पार्ट है, तो 3 सिमिलर पार्ट की क्या है कहेगी? 3 टाइम्स IAD। चलो IABC यानी कितना? 16 IG है अला भाई, और I0 है। IDEF क्या है? IDEF IG है, और 3 टाइम्स IAD वो मेरे को मालूम नहीं है। थ्री IAD I0 माइनस IG। अब IG क्या है? I0/16, क्योंकि हमें आंसर I0 के टर्म्स में लाना है। IAD 15 I0/16, 5 I0/16। तो अब ADE को निकालने के बाद I remaining that is equal to, पहले कौन था? ABC। कौन निकला? ABC का क्या था? I0। निकला कौन? 11 I0/16, that is equal to n I0/16। n क्या आएगा? 11। ખરેખર ખબર પડી હે? નિયમિત પર પાછળ જોઈ લેજો, હા, પૂછતા શરમાવાનું નહીં તમે। सर उसको आईडी के साथ बना तो डायरेक्ट હા, तो हम अपने I0 को सब्जेक्ट बना के लिया ना, उसके बजाय 16 IG लिख दो ना तो 15 हो जाएगा, उसको नीचे कर दो तो 5 हो जाएगा। चलेगा, वो भी चलेगा। डायरेक्ट प्लस करके 11 आ जाएगा। वो एक બધું કે IG ના ફોર્મેટમાં લખો ને તો ફટાફટ થઈ જાય। फ्रैक्शन में आएगा। એ તમારી મરજી, પણ થીમ ખબર પડી આની અંદર કે રટ્ટા નથી મારવાનો આનું। મને પહેલાં લોકોએ શોધાવેલું પહેલાં, सर ये वाली कौन से आ जाएगी? अगर मेरे को पता है तो भी इसकी थोड़ी पता होगी, ये ऊपर वाले की। तो ये तीनों सिमिलर है। हमारी एक्सिस कौन सी है? रिया अपनी एक्सिस तो पहले ज રાખવાની હો। પછી 1 2 ને 3 પાર્ટ તો લુક્સ સિમિલર, तो આ 3 ની આપણે ADE જેવી જ થાય। 3 टाइम्स IAD और बीच वाली IDEF मिलके ही वो प्लेट बनाती है। तो IADE को आप I0 के टर्म्स में लिख लो, फिर ये निकालने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। वाच जो करेगी करजो। चलो, कैसे भयंकर प्रॉब्लम है। चलो, ये तो फालतू वाला है, JEE 2020 का है। શું આપ્યું છે? shown in the figure is rigid and uniform 1 meter rod, long rod AB held in uniform position by 2 strings tied to its ends and attached to the ceiling. The rod is of mass M and had another weight of mass 2m, hung at a distance of 75 centimeter from A. The tension in the string A at A is, A પાસેનું ટેન્શન કેટલું હશે? હવે સાંભળી લો, બીજું કોને આપણે મૂકેલું છે? આ 2m છે, 50 આનું પોતાનું માસ, इसका मास क्या है? रोड का मास
rigid and uniform 1 meter long rod AB held, बराबर, द रोड इज ऑफ मास एम। अच्छा, इसका मास एम है रोड का, तो ये आ जाएगा एम जी। फिर रिया 2m मास है, तो ये क्या आ जाएगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए इज। अच्छा, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टी बी। अब टी ए टी बी दोनों फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू 3mg। एक इक्वेशन ये आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो पूछा गया है सिर्फ टी ए, तो क्यों टी बी को फाइंड करूँ। इसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी टॉर्क ले लेता हूँ। लटका हुआ है कि घूम रहा है, लटका हुआ है, तो ये इसका मतलब कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो विथ रिस्पेक्ट टू बी टॉन एट तो 0 होना चाहिए। अब बी के पास एक उंगली रखेंगे, एम जी एंटी क्लॉकवाइज, 2mg भी एंटी क्लॉकवाइज, और वो टी ए कितनी दूरी पे है, 100। mg कितनी दूरी पे है, अल्लाह 100 माइनस 50 दूरी निकाल ली है। और 2mg कितनी दूरी पे है, 25। हाँ, 100 गया। टी ए इज इक्वल टू एम जी। 3 स्टेप का प्रॉब्लम था। 1mg वो दवाई की ऑनलाइन शॉप होती है, वो है 1 मिलीग्राम। 1mg वो जैसे अमेज़ोन आता है ना, तेरे को कुछ दवाइयाँ चाहिए तो 1mg की ऐप होती है। चलिए, थोड़ी सस्ती आती है दवाई। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 kg। अब ભાઈ આની અંદર કોઈ આટા મૂકી દેવા જોઈએ નહીં। હા, ફિઝિક્સ આટલું એ અઘરું હોઈ શકે છે, તો આમાં એન્જોય કરીને ભણવાનું, સમજ પડી જાય તો માનવાનું કે ભાઈ આપણે ખરેખર બહુ પુણ્ય કર્મો કરેલા છે। ન સમજ પડે તો માનવાનું કે થોડા પાપ ધોવાના હજુ બાકી છે। ખાલી સમજ પડવી જોઈએ। ચાલો, તો a block of mass m is equal to 1 kg slides with velocity v 6 meter per second on a frictionless horizontal surface and collides with a uniform vertical rod। બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે। બ્લોક આવતો હતો, રોડને પીવટ કરેલો હતો, ब्लॉक कोलाइड थयो, किसके साथ चिपक गया, रॉड के साथ चिपक ही गया और रॉड को ऊपर ले गए। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रोड इज पिवोटेड अबाउट ओ स्विंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन मेकिंग एंगल थीटा बिफोर मोमेंटरीली कम टू रेस्ट। ऐसे रस्सी लटकी हुई है, आप दौड़ते दौड़ते जा रहे, रस्सी पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, आपका मोमेंटम उसको मिलेगा, आप कुछ ऊंचाई तक जाओगे, वापस नीचे आओगे, आप झूला झूलोगे। तो ऐसा ये झूला है। તમે દોડતા દોડતા ઘણી વખત હિંચકા પર બેસી ગયા હો નાનો બગીચામાં રોકવા માટે, તો જેવા તમે બેસી જાઓ તો તમારું મોમેન્ટમ હિંચકાને મળે કે નહીં? તો તમે થોડા ઉપર જાઓ તો મોમેન્ટરીલી કેટલો એંગલ બનાવશે તે પૂછેલું છે। બધા ડેટા આપેલા છે। રોડનું માસ 2 kg 1, પેલું तो स्मॉल 1। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आएंगे, एक यहाँ पे क्या इनइलास्टिक कोलिजन, वो तो एक है, लेकिन यहाँ पे मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था 2-3 बार, आपको तो 4-4 बार पढ़ाया है।
कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं, होगा? क्यों होगा? नहीं થાય, આની સાથે અથડાય ને એટલે ભાઈ કઈ 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 એંગ્યુલર નહીં, સોરી लीनियर, अच्छा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सो सॉरी यार, क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगे। मैं एंगुलर मोमेंटम कीधું પહેલા, वो तारी दवाइया की जरूर है 1 mg से, वो કેમ ન થાય ખબર ને, અથડાય નહીં તો આ બે વચ્ચેનું આ સ્મોલ એમ માસ પેલા રોડ પર જે ફોર્સ લગાડે, રોડ એટલું જ स्मॉल एम मास पर लगा, तो पछी बोलो आखी सिस्टम आम जवी जो कि इसे बांध के कौन रखता है? वो पिवोट, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगी, तो इस वजह से यहाँ पे આપણે છે ને આ બધું પૂરું થાય સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરની અંદર, એટલે આ જ બધી એરર કાઢવાની કે તમે તમારા મગજમાં, તમારા નહીં, ઘણા ટીચર લોકો 20-20 વર્ષથી ભણાવે, મારાથી અમુક વસ્તુ એમ કેવી ભૂલ થઈ જાય ખબર, કે આ તો આમ જ છે, પછી ખબર પડે યાર મેં ભૂલ કરી. તો અમુક વસ્તુ ફિઝિક્સમાં એવી છે કે જે ભૂલ થવી જ ન જોઈએ, તો એ બધા ભૂલોના લિસ્ટ મારી પાસે છે. તમારા જે આગલા ફાઉન્ડેશનવાળા હતા ને એના પરથી મેં એ લોકોને કીધું કે જો આ બધી ભૂલ થાય, ને એ લોકોએ સ્વીકાર્યું કે ઇઝી છે તેમ છતાં ભૂલો થાય છે. હવે એનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું, હમણાં જે ફાઉન્ડેશનવાળા એ અને જે રેગ્યુલર ભણતા હોય તે, આ બંનેમાં અઘરા પેપર નીકળેલા હોય તો ફાઉન્ડેશનવાળા આગળ JEEમાં, તે 25-25 માર્કથી આગળ, અઘરામાં 25 એટલે બહુ મોટું, અને સહેલા નીકળ્યા હોય ને એકદમ સહેલા તો 12-15 માર્કથી પાછળ. તમે મત પડે, સહેલું પેપર નીકળે ને એટલે એ લોકોની મેન્ટાલિટી સહેલું છે. જેવું તમે મેન્ટાલિટીમાં જાઓ કે પેપર સહેલું છે એટલે તમારી ભૂલ થવાની ચાન્સીસ મેક્સિમમ, કારણ કે એ સહેલામાં 2-3 ટ્વિસ્ટેડ મૂક્યા હોય, જે આવા મૂક્યા હોય, એટલે આવા નહીં પણ સમથિંગ તમે ભૂલ કરતા હોય તો સેમ વસ્તુ થઈ આ વખતે. પેલા રેગ્યુલરવાળા 15-20 માર્ક આગળ 12th વાળા, એટલે હું ખાલી ગયો ને તો પેલાને આંખમાં પાણી આવી ગયું. મેં લોકોને કીધું કે ભાઈ 4 વર્ષની મહેનત છે આપણી, તો માર્ક્સ તો આવવા જ જોઈએ. મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમારી સાયકોલોજી આવી, તમે છે ને એ લોકો પહેલેથી એક મૂડમાં પેપર સહેલું અઘરું એવું વિચારવાનું જ નહીં. પેપર છે અને મારે આપવાનું છે, પછી એ સહેલું એ હોઈ શકે અઘરું, મારે મારું એક્સેલન્સ છે વાપરવાનું છે. અને તે વખતે શું કોન્શિયસનેસ તમારી રહી. તમે ઘણી વખત શું પેપર આપતી વખતે બસ એક ફરજના ભાગરૂપે, फर्ज क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट के फॉर्म में आप देते हो. ऐसा नहीं, वो मेरा है पेपर, मेरे को इसमें अचीवमेंट लाना है, इस तरह से पेपर दो, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे. समझ પડે? એટલે અઘરું સહેલું પ્રેડિક્શન રાખીને જો પેપર છે એમ જુઓ, પેપર છે ને મારે આપવાનું છે, પછી એ સહેલું હોઈ શકે, અઘરું હોઈ શકે, જે હોય તે. આ વસ્તુ મેં પેલી તેજસ્વીને સમજાવેલી ને એટલે એ ટકી રહી લાસ્ટ યર. બાકી લાસ્ટ યર ફિઝિક્સનું પેપર કેવું ખબર, કે જોઈને જ તાવ ભરાઈ જાય. નીટમાં ઘણા પેપર જોઈને જ બરાબર એમનું ડિમોલિશન થઈ. એટલે એવું બધું નહીં કરવું. મેં કીધું પેપર જે આવે તે પેપર છે તારે આપવાનું છે. અને એ જે એને મને મળવા આવીને તે મને જ કીધું, મને કે સર એ જ છેલ્લું વાક્ય, પેપર છે મારે એને આપવાનું છે, પછી અઘરું હોઈ શકે ને સહેલું, હું મારું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપીશ. ને એને આપ્યું. બાકી ફિઝિક્સમાં મને જ લાગતું હતું જે રીતનું એનું માઇન્ડસેટ હતું ને, એટલે હું જેવું પેપર પૂરું થાય ને એટલે મેં ફોન કરેલો, પણ એ ખુશ હતી કે સર બધાના મોડા જોઈએ ને હવે મને આનંદ છે કે મારું તો થોડું સારું ગયું છે એમ. બીજા બધા રડતા હતા. चलो तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, लोग करते हैं वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, एक है तो पहली मिस्टेक तो वहाँ पे हमें चल जाते. फिर
आप लंबा लंबा गिनोगे आपका जवाब नहीं आएगा. टाइम भी गया, માર્ક્સ બી ગયા. હા, આ બધું સમજાય, ચિંતા નહીં કરતી. ચોથું ચેપ્ટર આપણે ભણશું ને, 4th. જ્યારે જ્યારે અથડામણ થાય ત્યારે મોમેન્ટમ કન્ઝર્વ થાય એવું કહે. પણ અહીંયા પણ અથડામણ છે, બટ પેલો ફ્રી સ્ટેટ નથી. સમજે કે? એટલે હવે તમને મજા આવશે. કેમ ખબર? હવે તમને તમારી એરર ખબર પડે. અને હવે પછી હું ભણો ને 3rd ચેપ્ટર, ઉત્તરાયણના દિવસ આપણે એવું છે, બપોર પછી દવે. હા, કરાવી દો. પહેલાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કરાવીશ, પછી કરાવીશ. 1 year અને પેલું 1 year મેં તમને શીખવેલું અહીંયા નથી, એટલે આ લોકોને તમારે નથી શીખાયું ને? નહીં. એનું કારણ છે તમે છે ને એ કેમ ભૂલાઈ જાય ખબર? તમને પ્રોપર આઈડિયા જ નથી. એની થિયરી તમને LC પ્લસ આ અને મેઇન સ્કેલ રીડિંગ પ્લસ LC પ્લસ, પણ એ આવ્યું કાંથી? અને તમે અત્યાર સુધી શું ભણ્યા? 1 yearની અંદર વધારે ડિવિઝન્સ અને મેઇન સ્કેલમાં ઓછા. હવે જતું ને મેઇન સ્કેલ का 9 वहाँ पे 10 के साथ. એટલે એવું નહીં મીન્સ જેટલા ડિસ્ટન્સમાં મેઇન સ્કેલના 9 હોય એટલામાં પહેલાંના 10 હોય. એક દાખલો છે 2016 एडवांस. मेन स्केल के डिवीज़न 11 और 1 year स्केल के डिवीज़न 10. अब LC निकालो. एक તમે હવે LC निकालो, नेगेटिव आएगा. नेगेटिव LC थोड़ा आ सकता है. तो एनी प्रॉपर मेथड ज अलग है. चलो तो अभी जाइए, खाली स्टेप जो लिए. अच्छा, क्या नहीं होगा यहाँ पे? LMC नॉट, हाँ AMC होगा. तो O के रिस्पेक्ट में पहले मोमेंटम कितना था? MV L, अला MV L. अब फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम I ओमेगा. ये प्योर रोलिंग है. फाइनल एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, इनिशियल MVL. अब यहाँ पे के कितना गंदा दाखला है. ये I है ना, I इसके अबाउट है ना, तो ml²/3 और इसे हम पॉइंट मास लेना है तो ml². अल्लाह आई क्या होगा? ये रोड भी घूम रहा है लेकिन n के अबाउट, तो I इज इक्वल टू रोड क्या आएगा और वो ये पॉइंट मास का ml². चलो, इस तरह से आपने क्या निकाला? ये पता है आपको ओमेगा मिलेगा. चलो, मैंने ओमेगा निकाल दिया है वो. हाँ, AMC अबाउट .0. तो कहाँ पे निकाला है? नहीं निकाला. अच्छा, मैं सिर्फ समझाया कि हमें O के रिस्पेक्ट में था. अब MVL डेट इज इक्वल टू L. अच्छा, मैंने उसका भी शॉर्टकट बना दिया. ये कितना लंबा था तो मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे, इस वजह से मैंने उन लोगों को क्या बोला, गधे बच्चे ऐसा करते, आपको पता ही है कि ये जब ऊपर, मैंने पीछे से ऐसे लास्ट में से शुरू किया कि ये जब ऊपर जाएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू. लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी कौन अटेन करेगा? वो सेंटर ऑफ मास. तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं है. सेंटर ऑफ मास बीच में कब होता? सिर्फ रोड होता तो उसका सेंटर ऑफ मास बदल गया, नीचे आ गया. तो सेंटर ऑफ मास की गिनती देखो. ये कितना मास था? M1, हाँ 2 kg. रोड का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, हाफ, क्योंकि 1 मीटर है ये, है ना. फिर M2 यानी 1 kg और 1 मीटर की दूरी पे है. मिस. सो M1y1 प्लस M2y2 M1 प्लस M2, तो बोलो ये 2/3 मीटर पे आएगा. तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 2/3 पे है. फिर कहाँ पे चला गया? ऊपर. अरे यार, ये L डैश. चलो, L डैश cos थीटा.
ये एल डैश है तो एल डैश का ये कंपोनेंट एल डैश कॉस थीटा, तो एच क्या आएगा? माइनस cos थीटा। एल डैश 1 माइनस कॉस थीटा। अब करना क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ, टोटल मास एम जी एच, टोटल मास है हमारा एम प्लस एम जी एच। अब यहाँ पे मैंने स्मार्टनेस ली थी, वो जो एएमसी वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 आई। ये भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एल ओमेगा अला बाय आई ओमेगा डेट इज इक्वल टू एल अला के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हाफ पी वी पी स्क्वायर बाई 2m। पी को रिप्लेस करो एल, एम को एल, को आई। હા ઇલેક્ટ્રિસિટી ઘુસાડી દીધું જો બેન. અચ્છા સારું બરાબર જ છે ને કે તો મારી જ ભૂલ છે યાર, માએ ઘુસાડી દીધી એલ સ્ક્વેર બાય 2i. હવે તો બુદ્ધિ ગઈ મારી. તો હાફ આઈ ઓમેગા સ્ક્વેર એલ સ્ક્વેર બાય 2i. ચલો તો 2i આવી ગયું ભાઈ. હવે એલ જે છે ને એલ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ, તો એંગ્યુલર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશન કેવી રીતના લઈશું? સીધું ભાઈ ओमेगा 5 नहीं करता. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? एम वी इंटू एल और फाइनली कैपिटल एल. बस वही लिख लो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ओमेगा फाइंड करो, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एम जी. इंस्टेड ऑफ दैट मैंने ऐसा कुछ किया है. करते करते मेरे को एच इतना मिला. अब एच वो क्या था पता है ना? एल डैश 1 माइनस कॉस थीटा. सिर्फ फीलिंग ही लेनी है, कंसेप्ट ही फाइंड करना है. पहले तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. एम भी टकराया, वो नहीं करना है यहाँ पे. चलो फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा 23/50. यहाँ से तो मेरा भी नहीं आया था, मैंने भी 67 टिक किया था, 69 टिक किया था. एक्चुअल आंसर क्या था? 63. क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, गलती से वो टिक किया था, फिर बाद में आ गया था. क्योंकि वो जो वैल्यू है 23/50, ऐसा कोई आपके पास नहीं. मैथ्स में ऐसा आता है, इन लोगों को आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो थोड़ा इसके करीब आएगा, 62 ऐसा कुछ आएगा. लेकिन जब मैंने टिक करना चाहा था ना, तो मेरे को मालूम है cos 45 क्या आएगा? 0.707 और cos 60 क्या आएगा? 0.5. हाँ क्या ना? तो ये 60 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना ये कम होगा. ये 23/50 है ना, वो 0.5 से कम है, क्योंकि 25/50 होता तो 1/2, इससे भी कम है. तो इतना मैं बोल सकता हूँ 60 से ज़्यादा आएगा. तो मैंने गलती से 69 कर दिया, लेकिन वो 63 है. तो ऐसा पेपर में कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बापा सीताराम करके वो टिक करना, ऐसा नहीं है. फिर आता है ये पूरे इतिहास में 2020 के सिर्फ पॉइंट समथिंग % ने अटेम्प्ट किया था. उन लोगों का इतना करेक्ट है, अटेम्प्ट तो काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन इतने लोगों का ये करेक्ट था. लास्ट में वो वाला जो मैंने SHM में आपको पढ़ाया था, वो हम पढ़ेंगे SHM में. नहीं, वो प्रॉब्लम इतना इजी है, लेकिन उसका यूट्यूब का सॉल्यूशन देखोगे इतना बड़ा वाला है. वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 या 3% बच्चों ने अटेम्प्ट किया था और 1% का करेक्ट था. अब आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये, लेकिन उस टाइम माइंडसेट नहीं होता है. हाँ, અમારે એવું કીધું હતું કે આવી રીતે હોય કે તમારે એવું લાગે કે 60 થી કે વધારે આવશે તો જે નિયરેસ્ટ આન્સર હોય મેં પણ આમાં એવું ન થાય, એમાં બીજું બી હોઈ શકે. એટલે આ આપણે બધા આવા જે બધા ક્વેશ્ચન છે ને, એ કેટલો નિયરેસ્ટ આન્સર લાવી શકીએ ને, તો એ આપણે શીખીશું. 12thની અંદર એવા ઘણા GEEમાં MCQ છે.
કે જેના બબ્બે આન્સરની વચ્ચે જ આવતું હોય. હવે શું કરું તે હું તમને ગણતરીમાં શીખવીશ કે આવું આવે તો આમ કરાય. અમે એ બધું सीखा है. सर ये अगर नीट में आया तो कितना टाइम देना पड़ेगा? न छोड़ देना होता है उसको. मैं तो छोड़ देता हूँ. मेरा सर ऐसा बोलते हैं कि ऐसे सब छोड़ देना, मतलब वो अपने लास्ट में मैं, क्योंकि मेरे को पता ही है क्यों पता है इसको देख के ही पता है कि पहले मेरे को AMC करना पड़ेगा, फिर वो सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया तो MGH में लेने के लिए वो जो H आएगा उसके लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके MGH आएगा. ये जो दूरी मैंने निकाली वो सेंटर ऑफ मास से निकाली. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को जैसे 3 स्टेप दिखेंगे तो पहले मैं रुक जाऊँगा. यहाँ पे पहले कौन सा स्टेप दिखा, कोलिजन वाला AMC, फिर सेंटर ऑफ मास वाला, और 3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू MGH. जैसे 3 स्टेप देखेंगे तो मैं रुक जाऊँगा, उसे मैं बात के लिए रखूँगा, दूसरा प्रॉब्लम ले लूँगा, और मैं ऐसे उसे छोड़ूंगा कि भी मेरे को ये करना नहीं है, ये मैं करूँगा ही नहीं. और ऐसे ऐसे जब 3 स्टेप आने ही वाले हैं ना तो पूरे इंडिया में आप लकी हो गए, क्योंकि आपने छोड़ा हुआ है. आप दूसरे इजी है जो प्रॉब्लम हो गए वो आप अटेम्प्ट करोगे, लेकिन जो ईगो में गया और ये सॉल्व करने बैठा ना वो इजी में गलती करे, क्योंकि ये प्रॉब्लम 5 मिनट से कम टाइम में होगा ही नहीं. आपके लिए होगा ही नहीं, 5 मिनट होगा ही होगा. तो करना, गिनती करना, और फिर भी लास्ट में तो कंफ्यूजन में ही होंगे ना, 63 ठीक करूँ या 69. चलो ये भी नीट के लिए, नॉट फॉर नीट, इसीलिए मॉड्यूल में इन लोगों को तो करवाया ही नहीं. ये मेंस वाले फिर भी वो छोड़ा गया है. कराया बोलो यार, हम लोग को तो करवाया ये तो मैं કરાવેલો હતો. હા, યુનિફોર્મ રોડ આ લોકોને પૂછી લે, મુકાઈ દીધેલા છે. હા, કરાવ્યો હોય તો હું હારી જાઉં છું. આ બંને પ્રોબ્લેમ તમને છોડાવેલા છે બીજું કંઈ ના, તું જ છે ને. આ જેણે કરાવ્યો હોય ને કોઈએ નથી કરાવતો, છેલ્લા 2 વર્ષથી નથી કરાવતા. હા, જોઈ લેજે ને. હવે a uniform rod of length L is pivoted at one of its ends on a vertical shaft of a negligible radius. When the shaft rotates at an angular speed omega, rod makes an angle theta. આવું હોય ને આમ કે આમ હતું આમ આને તો આમ ફેરવે ને આમ ખબર પડે કંઈ છે નહીં, પણ કોઈ વસ્તુને તું આમ ફેરવે ને તો એ વર્ટિકલ સાથેનો એંગલ વધતો છે. कोई वस्तु तो हम फेरवे आम, जैसे ओमेगा बढ़ाओगे तो उसका एंगल वर्टिकल के साथ बढ़ता जाएगा. सही है कि गलत है? हमारी पास आ है બધું જતું રહે ઓલવાય. હા, આમ છે, આમ સ્પીડ વધારી જો वर्टिकल साथ एंगल વધે है कि नहीं, वो टूट जाएगा. તો આ વર્ટિકલ સાથે એંગલ વધે. હવે એને ફેરવે કોણ, તો અહીંયા ત્યાં હિંજ થયેલો છે. ક્યાં? રોડ. અહીંયા રોડ જ્યારે આમ ફરતો હોય ને, ભક્તિ ખાલી કન્સેપ્ટ જોવાનું છે, સોલ્યુશન નહીં, ખાલી કન્સેપ્ટ. રોડ ફરે, તું શું વિચાર મારે જાણું. रोड फरे तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करेगा नहीं, और पूरा रोड जो है ना वो रोटेशनल करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या करेगा. अब फोर्स कौन लगाएगा इसको, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा FH. मैंने बोला कि हिंज के पास दो फोर्सेस होते हैं, वर्टिकल, वेरी गुड. एक वर्टिकल, ये वर्टिकल क्या करेगा mg के साथ कुछ ना कुछ बैलेंस करता होगा, और ये हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स देगा. इसके सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स. हो गया, बस यही तो कंसेप्ट है. फिर उन्होंने जो बोला है वो हमें करना है. देखते हैं. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, F वर्टिकल डेट इज mg, सही है. F हॉरिजॉन्टल डेट इज इक्वल टू MAC, और AC के कितने फॉर्मूला,
वी स्क्वायर बाय आर, फिर वी स्क्वायर बाय आर, फिर अच्छा वी ओमेगा, वेरी गुड दबे, मैं ये वाला लूँगा। अब ये L/2 है तो L/2 का ही कंपोनेंट N/2 cos थीटा, ये L/2 sin थीटा, वही तो हमारी रेडियस। અલા ભાઈ L/2 નો cos થીટા, L/2 sin થીટા રેડિયસ, અને હવે FH ઇઝ ઇક્વલ ટુ MR ઓમેગા સ્ક્વેર થઈ ગયું। હવે એમણે ગણવાનું કીધું છે, આવું ગણજો, જો શું કીધું, ટુ ફાઇન થીટા, હવે જો આવું કરવાનું કીધું છે, ટુ ફાઇન થીટા ઇક્વેટ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ direction going into the paper ml square by 12 omega square sin theta cos theta about the center of, अच्छा એટલે તમને રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ, ગુજરાતીવાળા એંગ્યુલર મોમેન્ટમનો રેટ, ઓ અત્યારે તો ટોર્ક શોધવાનું કીધું છે, dl/dt તો ટોર્ક કહેવાય, જે આટલું આવે છે, center of mass to torque provided by the horizontal and vertical force about the CM. Value of theta is then such that, આવું કરો અને હવે તમે જે થીટા મળે તે શોધો। તો જો ટોર્ક અબાઉટ સી, कौन कौन टॉर्क लगाएगा? FH, अच्छा FH, અને અબાઉટ સી શોધવાનું છે, સી પર આંગળું મૂકો, FH એન્ટી ક્લોકવાઇઝ યાર, અને FV क्लॉकवाइज। એવું લાગે ને मीन्स તમે આવું કીધેલું, धारा मैंने ऐसा किया था, इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करो, FH आ जाएगा, फिर इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लो, अब तो आसानी से पता चल जाएगा कौन क्लॉकवाइज, उंगलियाँ ज़्यादा मत घुमाओ, FV को ऐसे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ले लो, अब परपेंडिकुलर के पास वो क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला है, क्योंकि उन्होंने बोला है डिरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर, अंदर की ओर, FH L/2 cos थीटा माइनस FV L/2 sin थीटा, अला परपेंडिकुलर डिस्टन्स लीधा, FH મળે L/2 cos थीटा, जो FV L/2 sin थीटा, टॉर्क એટલે dl/dt, और dl/dt आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, नेट टॉर्क आपको दिया है, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દો, બધું ઉડી જ જશે, 3g/L, बस इतना ही था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम है। कितना दिया देख, सब कुछ दे दिया है ये, अब आप देखोगे तो सब कुछ दिया हुआ है, देखिए FV, ये FH, जब ये घूमेगा सेंटर ऑफ मास, FS इज इक्वल टू, इसको R ले लो, R MR ओमेगा स्क्वायर, FV यानी क्या आएगा mg। अब टॉर्क लेना है सीखे, वो भी बोला गया कि टॉर्क लो दोनों का, टॉर्क अबाउट C, FV का क्लॉकवाइज, FH का एंटी क्लॉकवाइज, FH इंटू L/2 cos थीटा मीन्स, और FV इंटू L/2 sin थीटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, FV mg, FH MR ओमेगा स्क्वायर, और वो वाला तो टॉर्क दिया है ना हमें, बस उसको रख के हमें cos थीटा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके नीट के लिए तो है ही नहीं, लेकिन क्या करना है वो आपको समझ में आ गया होगा बराबर। दिस इज द एंड ऑफ अवर रोटेशनल बिग जर्नी, वो लांबी जर्नी, એટલે તમે સ્કૂલમાં નથી ભણાય।